ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں لگتا تھا کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد حالات بدستور ویسے ہی رہیں گے. نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ عمران خان کو نہ صرف گرفتار کروانا ہے بلکہ ان کو نااہل کروانا ہے. دیکھیں بنیادی چیزوں کے اوپر تو سب کو بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے. یہ گرفتاریوں میں کالا کپڑا ہے, ٹارچر ہے, الٹا لٹکانا ہے, کرنٹ لگانا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, یہ سارے مان جائیں گے جب الیکشن آئیں گے. کوئی کہیں نہیں بھاگ رہا. پی ایس ایل کو سیکیورٹی دے رہے ہیں نا, ابھی فیفا ورلڈ کپ کو سیکیورٹی دے کر آئے. تاریخ کے اندر جب لکھا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت تباہی پھیری تھی تو پیپلز پارٹی کہے گی تو ہم تو اس کے صرف ایک اتحادی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی آر کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشا قریشی. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام عمران ریاض خان صاحب, جن سے آج ہم بات کریں گے منی بجٹ کے بارے میں اور موجودہ حالات کے بارے میں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور ان کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو چلیے آئیں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. پی ڈی ایم حکومت نے آج منی بجٹ پاس کی ہے اور طوفان ایک نیا آ گیا مہنگائی کا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا, ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اب ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. ان چیزوں کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں گے الیکشن میں, پی ٹی آئی والے بھی کریں گے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے, بوجھ ختم کریں گے. اب یہ ہو نہیں سکے گا. اکانومی کو جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب جو مہنگائی کی ویو آئی ہے, جو معاہدہ آپ نے کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس معاہدے کے بعد آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ کو مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی, یہ مشکلات آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا نا 2022 میں شروع میں, تو اس کے بعد لوگوں کا کانفیڈنس چلا گیا. جب لوگوں کا اکانومی سے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ انویسٹمنٹ بند کر دیتے ہیں, خرید و فروخت کم کر دیتے ہیں. تو آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ سلو چلتا ہے یا رک جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ پیسہ اکٹھا نہیں کر پاتی. جب گورنمنٹ پیسہ اکٹھا نہیں کر پاتی تو گورنمنٹ کو خرچ تو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے جو ان کا خرچے ہیں. پھر جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے خرچے کم کرنے کی بجائے خرچے بڑھا دیے, پیسہ کم ہوتا گیا, قومی خزانے کے اندر سے یہ نکالتے گئے اور وہ لوئسٹ لیول کے اوپر پہنچ گیا. اب انہیں ملک چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے. جب یہ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کو پیسے تو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمارے پیسے واپس ملیں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس گارنٹی کے لیے آئی ایم ایف ان چیزوں کے اوپر, ان شرائط کے اوپر آپ کو پیسے دیتا ہے جن شرائط سے آپ وہ پیسے واپس کر سکیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول مہنگا بیچیں, اس کے اوپر آپ زیادہ ٹیکس لیں, وہ ٹیکس آپ ہمارے حوالے کریں گے, اس میں سے پیسے آپ کو اکٹھے ہو جائیں گے, آپ ہمارا قرضہ بھی اتاریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں سے مزید ٹیکس لیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ایکچولی جو کرنا ہے وہ ٹیکس ریفارمز کرنی چاہیے تھیں, لیکن وہ کرنے کی بجائے ہم نے پاکستان کی مڈل کلاس پہ, لوور مڈل کلاس پہ, پاکستان کے غریبوں کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اب یہ بوجھ ایسے اترے گا نہیں. ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا. ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں لگتا تھا کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد حالات بدستور ویسے ہی رہیں گے, معیشت تھوڑی سنبھل چکی ہے, بہتر ہو گئی ہے, یہ ساری چیزیں ایسے ہی رہیں گی اور کوئی بڑی تبدیلی آئے گی نہیں. اور یہ سیاسی عدم استحکام اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوگا جب عمران خان کو نکالا جائے گا. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھا رہے تھے, عمران خان صاحب نے خود بھی بتایا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو, اور جن لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ نے مشورہ کیا انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ ڈھول مت بجائیے گا, یہ آپ کے گلے پڑ گیا تو آپ سے بجے گا نہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے. اور انہوں نے بات مانی نہیں. یہ تجربہ انہوں نے کیا, اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں, اور ابھی نہیں, ہمیں ابھی چند سالوں تک اس کو بھگتنا پڑے گا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ بتائیے گا کہ وزیر خزانہ نے آج صدر سے ہمارے بات چیت کی اور چارٹر آف اکانومی کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مان جائے گی, اور کیا یہ وقت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں بنیادی چیزوں کے اوپر تو سب کو بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے. کچھ چند چیزوں پہ عمران خان صاحب کو چند لوگ آ کر ملے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے, بلکہ کچھ عرصہ پہلے نہیں, ان کو گولیاں لگنے سے بھی پہلے کی بات ہے. انہیں کچھ لوگ آ کر ملے تھے, ان میں کچھ صحافی بھی تھے, اور انہوں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ کچھ چیزوں پہ کنسنسس پیدا کر لیا جائے. وہ 3-4 چیزیں تھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ حکومت کسی کی بھی آئے, کسی بھی وقت آئے, معیشت کا ایک صحیح ٹریک ہونا چاہیے جس کے اوپر پاکستان کی معیشت چلے.
बुनियादी पॉलिसीज बन जाएं और एक मईशत के ऊपर एक सबका कंसेंसस हो जाए कि ऐसे हमने इसको चलाना है। दूसरा, पाकिस्तान में जो मिलिट्री की मुदाखलत है या इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ज़रा बड़ा हो जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, फ़ौज की मुदाखलत है सियासत के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए और उसके लिए भी एक पैटर्न सेट कर दिया जाए कि ये लिमिट्स हैं, ये कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, इसको भी सेट किया जाए। और तीसरा, इलेक्शन के लिए रूल्स बना दिए जाएं कि ये वो रूल्स हैं जिनके साथ इलेक्शन होंगे और इस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, उसके लिए भी तय कर लिया जाए। तो इमरान खान ने इन 3 चीज़ों के बारे में हाँ बोली थी और ये कहा था कि मैं इन तीनों चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हूँ, मईशत, फ़ौज का सियासत में किरदार और इलेक्शन कैसे होंगे साफ और शफाफ, इन चीज़ों पे। तो ये तो इमरान खान साहब ने कहा था और ये होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में दूसरी तरफ से खामोशी हो गई। नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार करवाना है बल्कि इनको नाअहल करवाना है, तो वो उनकी ज़िद की वजह से चीज़ें वहीं पर रुकी हुई हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक तरफ पीडीएम चाहती है कि पीटीआई चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हिस्सा बने, एपीसी का हिस्सा बने, दूसरी तरफ ये मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं या नहीं चल सकती, किस तरह से होंगी? देखिए, चल सकती हैं। पीटीआई को गिरफ्तारियों का फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। ये बात शायद अभी पीडीएम को समझ नहीं आ रही, उन्हें आ जाएगी समझ। पीटीआई को गिरफ्तारियों का नुकसान कोई नहीं हो रहा, उनको उनका नैरेटिव जो है, क्योंकि देखिए जो पीएमएलएन की गिरफ्तारियां होती थी वो वीवीआईपी गिरफ्तारियां थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स थे, बाकायदा पूरे मेकअप के अंदर वो लोग आते थे सूटेड बूटेड और उनको फूल फेंके जाते थे, पुलिस वाले उनकी उंगली के इशारे के ऊपर इधर इधर मूव करते थे, तो बड़ा फ़र्क था। ये गिरफ्तारियों में काला कपड़ा है, टॉर्चर है, उल्टा लटकाना है, करंट लगाना और पता नहीं क्या कुछ है, ये गिरफ्तारियां मुख्तलिफ हैं। तो इनका जो ये टॉर्चर सह रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसको इसका फ़ायदा होगा और हो भी रहा है। साथ ही साथ जो आप कह रही हैं ना कि एपीसी के अंदर बुलाना, वो एपीसी में बुलाएं, ऑफिशियली दावत दें। इमरान खान साहब ने कहा है वो अपने लोगों को भेजेंगे। अब देखें, ये भी तो पॉलिटिशियन है ना, ये वहाँ पे किसको भेजेंगे? ये कहेंगे मैं शेख रशीद का नाम दे रहा हूँ, मिलो, बुलाओ, जेल से बुला के बैठो उसके साथ। ये कहेंगे मैं मुराद सईद का नाम दे रहा हूँ, मुराद सईद वहाँ बैठ के क्वेश्चन करेगा कि जिस दिन मैंने कहा था कि दहशतगर्दी आ रही है उस दिन आप लोगों ने मुझे धमकाया था, जिस दिन मैंने कहा था कि ये हो रहा है, वो एक एक फैक्ट सामने रखेगा, उसको जवाब कैसे देंगे? फिर आजम सवाती को अगर भेज देते हैं तो आजम सवाती के साथ तो नजरें नहीं मिला सकते जो उसके साथ किया हुआ है इन्होंने। इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिक्स भी है और वो अपने बंदे, उनकी मर्जी है जिसको वो भेजें, तो ये जब बुलाएंगे तो वो भेजेंगे। और मिसाके मईशत अकेला नहीं, फिर बाकी चीज़ें वो भी तय कर लें। सिर्फ ये नहीं है कि आज आपको ज़रूरत है तो आप मईशत के ऊपर कुछ शराइत पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तखत लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान लें, सिर्फ ये नहीं है। फिर वो जो हल तलब 3-4 मेन चीज़ें हैं उन सबको हल कर लें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इलेक्शन की डेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन गवर्नर साहब के साथ मिलकर वो डेट्स दी जाएँ, लेकिन गवर्नर साहब का ये कहना है क्योंकि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की तो वो कहते हैं कि डेट्स मैं नहीं दूंगा। तो अब ये डेट्स कौन देगा इलेक्शंस की? गवर्नर ये कहते हैं कि वो इस प्रोसीजर का हिस्सा ही नहीं है तो इसलिए वो डेट नहीं देंगे। अगर गवर्नर इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है ना तो गवर्नर को निगरान काबीना से हलफ भी नहीं लेना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि मैंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की, यानी उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि जो असम्बलियाँ मैंने तहलील नहीं की, मेरी नज़र में वो तहलील नहीं हुई। तो भाई फिर आपने जो निगरान वज़ीर आला का हलफ लिया, जब आपने उनकी कैबिनेट का हलफ लिया, फिर आप वो भी ना लेते। अब ये वाला हलफ लेने के बाद गवर्नर पंजाब हर लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से इस चेंज का हिस्सा बन गए हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए। अब वो अपने आप को अपनी ख्वाहिश के ऊपर बाहर नहीं रख सकते, उन्हें ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अदालत सदर पाकिस्तान को कह सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डेट दे सकते हैं और इलेक्शन हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से एक और सवाल करूंगी, वो ये कि अब जैसे देखा जाए सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है, फंड्स नहीं आ रहे, फंड्स देने से मना कर दिया गया, तो इन सब हालात का जिम्मेदार कौन है और इस सिचुएशन को अगर हैंडल किया जाए तो किस तरह से किया जा सकेगा? ये सारे मान जाएंगे जब इलेक्शन आएंगे, कोई कहीं नहीं भाग रहा। PSL को सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, अभी फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देकर आए, हमारी सिक्योरिटी बहुत ठीक है, हम कर लेंगे, पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्शन हो भी जाएगा, फंड्स भी आ जाएंगे
सिक्योरिटी भी हो जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ज़िद है वो ख़त्म होनी चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट ने और इन सियासी जमातों ने ये ज़िद पकड़ी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना, उसको नहीं आने देना। तो यही एक रीज़न है जो रुकावट है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि वो तमाम पार्टीज़ के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, तो इन सब का क्या नतीजा निकलेगा? क्या वो ये मुज़ाकरात करके पतली गली से निकलना चाह रहे हैं या अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ना सियानी जमात है, उसने अपने आप को पीडीएम से भी बाहर रखा हुआ है कि पीडीएम के फैसलों से हम बाहर हैं। तारीख के अंदर जब लिखा जाएगा कि पीडीएम की हुकूमत ने बहुत तबाही फेरी थी, तो पीपल्स पार्टी कहेगी तो हम तो उसके सिर्फ एक इत्तेहादी थे। असल में तो पीडीएम वाले अलग थे और वो उनकी बहुत सारी जमातों का एक इत्तेहाद था, हम उसका हिस्सा नहीं थे। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को तारीख में सच्चा रखने के लिए कहीं ना कहीं मार्जिन निकालती रहती है। ये भी एक तरह का मार्जिन है, वो सबको इकट्ठा करके दोबारा बिठाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि देखें उनको पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में उन्होंने एमक्यूएम को भी बुरा भला कहना है, उन्होंने नून लीग को भी बुरा भला कहना है, उन्होंने पीटीआई को भी बुरा भला कहना है, फजलुर रहमान और जमात इस्लामी से भी लड़ाई करनी है। सबको बुरा भला कह के उन्होंने अपने वोट मांगने हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर PMLN ने सबको बुरा भला कहना है और वोट मांगने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ANP ने और फजलुर रहमान ने भी आपस में लड़ना है, वोट मांगने हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अल्टीमेटली इलेक्शन से पहले होनी है, उनकी हवा भी तो बनानी है ना इन्होंने, तो वो उस तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, ये मजाक रहते हैं, एक तरह से लड़ाइयाँ ही होनी है। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में से किसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो आपका क्या ओपिनियन होगा? मरियम नवाज़ का गुस्सा तबाही फेर देगा। उनको टेम्परामेंट का बहुत सीरियस इशू है मरियम नवाज़ का, और पीपल्स पार्टी में बिलावल से बेहतर बेशुमार लोग हैं, उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। PMLN में मरियम से बेहतर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। ये दोनों को ये आसमान से लिखवा के थोड़ी आए हुए हैं, या कोई बादशाह तो नहीं है इस मुल्क में कि इनके बच्चों नहीं बनना है वज़ीर आज़म, इनके बच्चों नहीं बनना है वज़ीर आला, या इन्हीं के पास रहेगा इक़्तिदार। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया जा सकता है। ये कोई शाही ख़ानदान नहीं है कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होंगे और इनके बड़े होने का इंतज़ार किया जाएगा कि ये बड़े होकर हमारे मुल्क के ऊपर रूल करेंगे। मरूसियत के मैं बहुत खिलाफ हूँ और मेरी राय में इन दोनों को नहीं बनना चाहिए, इनकी पार्टी के किसी अच्छे आदमी को बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, हमारा दोस्त नदीम अफजल चंद है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और बल्कि अभी वो कासिम गिलानी बहुत ज़बरदस्त है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी वहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर PMLN के अंदर बेशुमार लोग हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक को बनाया जा सकता है, ख्वाजा आसिफ को बनाया जा सकता है, एहसन इकबाल को बनाया जा सकता है, खुरम दस्तगीर को बनाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार नाम है, मैं सबके नाम ले नहीं पाऊँगा। लेकिन ख़ानदानों से बाहर निकलें, कोशिश करें कि आम आदमी को मौका दें। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आम आदमी को भी मौका देना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू वंस। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने सुना कि इमरान साहब ने कहा कि एक तरफ PDM चाहती है कि PTI चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के सिलसिले मुसलसल जारी हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये दो इस तरह की चीज़ें हैं जो साथ नहीं चल सकती। इन सब के लिए PDM को इन सब से निकल कर सोचना होगा। अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।